Dear students, today we are going to start exercise 2.2, question number 5. Find the inverse of the following matrices by the adjoint method. Here, take attention on adjoint method because you can find the inverse by adjoint method, by row transformation or by column transformation. But here you have to find the inverse of a matrix by adjoint method. So you know very well how to find the adjoint of a matrix. Now see this question, matrix minus 1 5 minus 3 2 is given. Let A is minus 1 5 minus 3 2. So before finding the inverse, first you have to check it is singular matrix or non-singular matrix. If any matrix is a singular matrix, then its det A equal to 0. And if det A equal to 0, then A inverse does not exist. Your work is over. But det A equal to det A, that is determinant of A, equals determinant of minus 1, minus 5, minus 3, minus 2. First we take minus 1 into 2 here, and then minus this minus from the formula, and minus 3 into 5. Now minus 1 into 2, minus 2, and minus 3 into 5, minus 15, but minus of minus is plus. So this will be plus 15, and 15 minus 2 equal to 13, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists because it is non-singular matrix. If it is not equal to 0, then it is non-singular matrix and A inverse exists. Now, find the cofactors. For adjoint, you need to find cofactors. So for the cofactors, A11. First you have to find A11. A11 means first row, first column get cancelled. It is first row. This one is first row, this one is first column. Remaining element is 2. So what is your general formula? Minus 1 raised to 1 plus 1 into 2 equal to 2. But your general formula is Aij equal to minus 1 raised to I plus j into Mij minors. So in this case, you have to find directly cofactors. A11 means first row, first column get cancelled. This is first row, this is first column. Write the remaining element here. This is 2 minus 1 raised to 1 plus 1 equal to 2. Similarly, A12 first row, second column gets cancelled. Remaining element is minus 3, and minus 1 raised to 1 plus 2. Here it is minus 1, and minus 1 into minus 3 is plus 3. A21 means second row and first column. This is second row and this is first column. If this is cancelled, इसको नहीं लेना है. This is cancelled. You have to write here 5 remaining element. But minus 1 raised to 3 is minus 1. So minus 1 into 5 is minus 5. A22 means second row, second column. Minus 1 raised to 2 plus 2 into minus 1 remaining element. Here it is minus 1. Therefore, adjoint of A is 2, 3. You have to write here column wise. When we write adjoint of A, we write it is column wise. 2, 3 first column and minus 5 minus 1 second column. This is adjoint of A. So what is your formula for the inverse of A? Since A inverse equals 1 upon det A into adjoint A. This is formula. You should learn it. A inverse equals 1 upon det A into adjoint A, which is equal to 1 upon 13 into value of adjoint of A from here. It is 2, 3, minus 5, minus 1. So for finding any inverse of the matrix by adjoint method, first you have to find cofactors of all element, cofactor, and then write the adjoint of A. Cofactors means like this, and adjoint of A, this one, this matrix. After that, A inverse 1 upon det A into adjoint A. This is formula which you have to learn and substitute the values. It is det A is 13. So this is 1 upon 13, 2, minus 5, 3 and minus 1. If these elements are divisible by the denominator, this denominator, so you should divide it. If not divisible, so write as it is 1 upon 13, 2, minus 5, 3 and minus 1.
So both the answers are correct. Anyone can write this answer. 2 upon 13 minus 5 upon 13, 3 upon 13 minus 1 upon 13 means dividing by 13 in each element. So this is A inverse is this by adjoint method. So dear students, if you are understanding this question, so you can solve second question in the homework 2 minus 2 4 3 by the same method. First here you have to find determinant of A by using same method. After that find the cofactors, and after getting the cofactor write down adjoint of A. After writing adjoint of A, you have to write the formula same, A inverse 1 upon det A into adjoint A, and then we get inverse of A. This is 2 by 2, so it is not difficult, it is very easy question. So you can try this question in the homework. Now see question number third. So third question, given matrix 1 0 0 first row, 3 3 0 second row, and 5 2 minus 1 third row. Let A equals this matrix. Let A equals 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1, and check your question once again 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1. Yes, it is same. After that, first in the first step, what you have to find here? You have to find first determinant of A. For the determinant of A, we write here det A. This is short form of determinant of A. Det A, read as det A equals determinant of 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1. Okay? After that, what you have to do? So you should write here 1 first, 1. After that, this column and this row get cancelled. Remaining element 3 into minus 1 minus 3 minus 0 into 2 minus 0. So 1 into minus 3 is minus 3 only. It is now minus 0 into something, this is all of 0, plus 0 into something, this is all of 0. So what is the remaining in this element? Only minus 3 here, in this 0, in this 0. So minus 3 minus 0 plus 0, which is equal to minus 3, and minus 3 is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Means minus 3 is not equal to 0. So matrix is what? Matrix is non-singular matrix. Matrix is non-singular matrix. So singular matrix and non-singular matrix we have studied in 11th standard. So no need to write here, but you have to write here minus 3 is not equal to 0. Therefore, A inverse exists, or A is invertible. Same thing. Now find the cofactors for all elements. So start cofactor A11. A11 means what? First row, first column. Minus equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into minus 3 only. How minus 3? Now see this 3 into minus 1 and minus 0 into 2. So 3 into minus 1 is minus 3 only remaining. Here minus 1 raised to 2 plus 1. So 1 into minus 3 minus 3. So A11 becomes minus 3. This is first element of cofactor. So after that you have to write A12 means first row and second column get cancelled. 3 into minus 1 minus 0 into 5. So minus 3 minus 0 again we get here minus 1 raised to 1 plus 2 according to formula. A12 equals minus 1 raised to 1 plus 2 into minus 3. So minus 1 into minus 3 is plus 3. Similarly A13, this is first row and this is third column. First row, third column get cancelled. 3 into 2, 6 minus 15. So 6 minus 15 is minus 9. See once again. 3 into 2, 6. 3 into 5 minus 15. So 6 minus 15. 6 minus 15 is minus 9. And here minus 1 raised to 4, that is plus 1. So 1 into minus 9 is minus 9. Clear? So these three from the first row and all columns. First row, first column, first row, second column, first row, third column. We get 3
that is A11, A12, A13. Now start second row, A21. So A21 is equal to minus 1 raised to 2 plus 1 into 0 after taking the method is 2 1, second row and first column. Here 0 into minus 1 0, minus 0 into 2 0. So both are 0 0. So we get minus 1 raised to 3. Minus 1 into 0 is 0. Now A22, second row, second column, minus 1 raised to 2 plus 2. Now see this second row and this is second column. This get cancelled. तो इसको नहीं लेना है. Second row, second column. A22, do not take that row and that column. Now 1 into minus 1, minus 5 into 0, right? 1 into minus 1, minus 1, minus 5 into 0 is 0. So minus 1 minus 0 is minus 1. And this power is even. So 1 into minus 1, minus 1. A23, second row, third column. Now see this. सेकंड रो कैलकुलेशन के लिए यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, फॉर कैलकुलेशंस ओनली. लेकिन अपना देखना क्या है मैट्रिक्स में. तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज कैंसल्ड. 1 into 2 2 minus 5 into 0 means 2 minus 0. So we write here minus 1 raised to 2 plus 3, this is minus 1. So minus 1 into 2 minus 2. A31 third row first column. Now see this is third row and first column 3 1, cancel. 0 into 0 0 minus 0 into 3 0. So this is 0. And A32, now see the explanation of same. 3 2 third row and second column get cancelled. It is 1 into 0 0 minus 3 into 0 0. So both are 0. So this is the reason here minus 1 raised to 3 plus 1 into 0 is 0. Minus 1 raised to 3 plus 2 into 0 is also 0. Now A33 third row third column get cancelled, third row and third column get cancelled. So it is 1 into 3 3 minus 0. Now see this one, A33 minus 1 raised to 3 plus 3 into 3 and 1 into 3 is 3 only. क्लियर. तो अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में यहाँ पर एक छोटा सा डिटरमिनेंट बना करके भी लिखा है, ठीक वैसा भी प्रैक्टिस कर सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन इज मेन. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना सोल्यूशन देखो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर कैलकुलेशन कर लिए तो ईच एंड एवरीथिंग डन. नो, इट इज़ नॉट डन. इट्स नॉट गुड फॉर योर प्रैक्टिस. फर्स्ट you should listen explanation carefully. After that you should calculate it, because this method is very important method. So after getting cofactors, what you have to write? देखो इसके बाद क्या लिखना है, adjoint of a. Adjoint of a equals minus 3 3 minus 9. First three elements column wise, then next three elements in the second column, and the last three elements in the third column. So C1, C2, C3. For the adjoint you have to write these elements in column wise. First three, next three and last three. You have to write in first column, second column and third column. Okay. After that, what you have to write? Since A inverse equals 1 upon det A into adjoint A. This is formula. यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लिख सकते हो. देखो यहाँ पर ब्रैकेट equals 1 upon minus 3 value of det A, minus 3 3 minus 9 0 minus 1 minus 2 0 0 3. So we see that maximum elements are divisible by 3. तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, राइट. तो therefore A inverse equals, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 0 minus 1 minus 1 upon minus 3, 1 by 3 here 0, this will be 3, 2 by 3 and 1. ऐसा भी लिख सकते हो, या A inverse equal to 1 upon minus 1 upon 3 into this much, ये भी चलेगा. तो बोथ आर करेक्ट आंसर. हम लोग डिवाइड करके भी लिखें या कॉमन करके लिखें. जैसा कॉमन मीन्स यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 3 ये कॉमन है और यहाँ पर अपना मैट्रिक्स का वैल्यू मीन्स एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ लिख सकते हो. तो ऐसा भी लिख सकते हो और डिवाइड करके भी लिख सकते हो. तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट.
इन केस अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं. I'll give you solution once again. I'll give you explanation once again for your doubts. और दूसरी थिंग डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. 1 2 3 matrix is given 1 2 3 0 2 4 and 0 0 5. So according to question number 3 with the help of third part, अभी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसके हेल्प से क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में सेल्फ ट्राई करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. But for the explanation, I'll give you solution. Just a hint. First, you have to find the determinant of A. तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा वे है. 1 है और इसके बाद एलिमेंट 0 0, तो हम इस तरफ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और इधर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं. वी विल गेट सेम वैल्यू. तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है 1 इंटू, देखो फर्स्ट हमने लिया 1, 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 0, तो 1 इंटू 10 10, बाकी ये दो जीरो हैं, सब जीरो होगा. तो इसका डेट ए का वैल्यू क्या आने वाला है 10. तो डेट ए इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स. अब इसके बाद क्या करोगे, नाउ यू हैव टू फाइंड को फैक्टर्स. को फैक्टर फाइंड कर लो. को फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ए लिखेंगे. एडजॉइंट ए लिखने के बाद फिर ए इनवर्स की फार्मूला. ए इनवर्स इज 1 अपॉन डेट ए इंटू एडजॉइंट ए. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी गेट ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. So dear students, you should try this question in the homework. Now see question number 6. Find the inverse of the following matrices. अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, find the inverse of the following matrices. कोई भी मेथड का नाम नहीं बोला गया. ऐसा नहीं बोला गया कि by adjoint method या by find the inverse by row transformation, find the inverse by column transformation. So anyone student can do by any one method. तो जिसको जो इजी लगे, तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो फाइंड करने का है यहाँ पर वो एडजॉइंट मेथड है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती. तो एडजॉइंट मेथड मैंने, देखो डियर स्टूडेंट, मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया एडजॉइंट मेथड कैसे फाइंड करना है. ये इजीली फाइंड कर सकते हो. ऐसा नहीं कि हमेशा उसी मेथड को रिपीट करते रहो, है कि नहीं. अब उसी मेथड को रिपीट करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा. चलो थोड़ा मेथड को चेंज कर लेते हैं. और इस क्वेश्चन को मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करके दिया है. रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इन्वर्स फाइंड किया है और इसको अच्छे से समझोगे तो ये दूसरे भी क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल है. नाउ सी, दिस वन इज योर गिवन मैट्रिक्स 1 2 2 माइनस 1. तो लेट ए इक्वल्स 1 2 2 माइनस 1. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें भी डेट ए ही फाइंड करना होगा. डेट ए इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो 1 इंटू माइनस वन एंड माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4. देखो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैंने, डेट ए यहाँ लिखा मतलब इसका डिटर्मिनेंट हो गया. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 -4 विच इज इक्वल टू -5 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स. ये 2/2 ऑर्डर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा. तो -5 इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमको अप्लाई करना होता है तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं ए सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. अब देखो ए इंटू ए इनवर्स अगर एक तरह से हम लोग देखें, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है -1, तो 1 - 1 होता है 0. ए रेज टू 0 क्या होता है 1. तो ए रेज टू 0 जो 1 होता है उसको हम लोग यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं. ठीक है. वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने आई से यहाँ डिनोट कर दिया है, कैपिटल आई. और ये आई मैट्रिक्स सेम उसी ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में एक क्वेश्चन होता है. यहाँ 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो आई का भी वैल्यू 1 0 0 1, ये भी 2/2 ऑर्डर में ही रहेगा. ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर इसी को हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करना होता तो हम लोग लिखते ए इनवर्स ए इंटू आई. ठीक है. ए इनवर्स ए इंटू आई, ए इनवर्स पहले आ जाएगा. तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग पहले यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. अब यहाँ देखो मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या है, दिस वन, दिस इज गिवन, ये हमने लिख लिया 1 2 2 -1 इंटू ए इनवर्स, ये हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिखोगे. एंड वैल्यू ऑफ इक्वल टू
कैपिटल आई, वैल्यू ऑफ कैपिटल आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो यहाँ पर I2, इसी को I2 भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो 1 0 0 1 ये लिखना है, क्योंकि ये I का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑर्डर। तो अगर क्वेश्चन 2/2 में है तो I का वैल्यू 2/2 में लिखोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, जो पार्ट यहाँ पर है ये 1 0 0 1, ये यहाँ पर कन्वर्ट होना चाहिए। ये 1 0 मीन्स इसको हमें आइडेंटिटी बना देना है, यहाँ पर 1 0 0 1 ऐसा लाना है। तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, जो कि 1 है ऑलरेडी, फिर ये 0 बनाओगे, फिर उसके बाद ये 1 बनाना चाहिए, और फिर यहाँ 0 बनाना चाहिए। ये इसका रूल है, ये ट्रिक है इसका, फिर से देख लो। अगर मान लो यहाँ 1 नहीं होता तो हम लोग पहले इसको 1 बनाएंगे बाई सब्ट्रैक्शन, एडिशन या डिवीजन, जो भी यहाँ पर आएगा रूल। तो 1 0, फर्स्ट कॉलम रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 एंड 1 बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ 1 बनाना चाहिए, फिर ये 0 बनाना चाहिए, ठीक है। मीन्स R1 R2 टू ही रोज हैं, तो हम टू ही रोज का यूज़ करेंगे। और दूसरी एक बात और स्टूडेंट्स, वो ध्यान देना, अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर लिया, जैसे हमने R1 R2 R3 से स्टार्ट कर लिया, तो हम इस क्वेश्चन में बीच में कहीं भी C1 C2 ये मेथड यूज नहीं करेंगे, मीन्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन को हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना होगा। ये इनके रूल्स हैं, जो रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलो अभी हमने लिख लिया A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ इसको 1 बनाना था, ऑलरेडी 1 है, तो अब इसके बाद अगला नंबर क्या था, ये 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये 2 माइनस 2 मिल जाए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि R2 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है, R2 माइनस 2 इंटू R1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है R1 है। तो यहाँ देखो R2 माइनस 2 इंटू R1, तो हमने सबसे पहले R2 लिखा है, तो क्या लिखोगे, अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 माइनस 2 R1। ये अपने थिंकिंग से, अपने लॉजिक से यूज करना है, ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला है, कोई ट्रिक है। हमें सिर्फ ट्रिक इतना ही मालूम है कि ये 0 बनाना है। मान लो यहाँ 3 होता तो क्या लिखते, R2 माइनस 3 इंटू R1। यहाँ 4 होता तो क्या लिखते, R2 माइनस 4 इंटू R1। यहाँ 5 होता तो क्या लिखते, R2 माइनस 5 इंटू R1, ठीक है। तो यहाँ जो भी नंबर रहेगी उतने टाइम्स R1 यहाँ यूज करोगे और ये 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन इसमें यूज कर रहे हैं कि अप्लाइंग R2 चेंजेस, इसको कि रीड है चेंजेस, R2 चेंजेस R2 माइनस 2 R1, मतलब जो चेंज होगा वो R2 में लिखा जाएगा। तो चलो R1 रिमेन्स अनचेंज, 1 2 एज इट इज़, ये लिख दिया। फिर ये 2 माइनस 2 0, -1 -2 इंटू 2 होगा यहाँ पर, तो -1 -2 इंटू 2 -4, तो -1 -4 becomes -5। अप्लाइंग सेम ऑपरेशन मीन्स सेम रूल, सेम सब्ट्रैक्शन ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट में, जो यहाँ अप्लाई करोगे सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करोगे। तो 1 0 एज इट इज़, फर्स्ट रो नो चेंज, 0 -2 इंटू 1, 0 -2 दैट इज -2, यहाँ 1 -2 इंटू 0 दैट इज 1 माइनस 0 इज 1, हो गया। तो ये अपने चेंजेस हो गए किस ऑपरेशन से, R2 चेंजेस R2 माइनस 2 R1, इसको लिया तो हमें क्या मिला, 1 2 0 -5 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स 1 0 -2 1। अब क्या करना है अगले स्टेप में, हमें अगले स्टेप में देखो, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर, कि इसको सबसे पहले 1 बना लेते हैं। आफ्टर गेटिंग 1 0 इन कॉलम फर्स्ट, वी शुड कन्वर्ट इट एज -1, इसको सॉरी +1, इसको 1 में कन्वर्ट कर दो। तो चलो अब इसको 1 में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं क्या करना है, ठीक है। नाउ कन्वर्ट इट इन 1, तो ये -5 को 1 बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, अगर -5 अपान -5 हो जाता तो ये 1 बनता, +1। तो अप्लाइंग R2 चेंजेस -1 अपॉन 5 इंटू R2, मतलब हम R2 को -5 से डिवाइड करेंगे, पूरा दोनों साइड R2 को -5 से डिवाइड करेंगे। देखो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझो और लिखते जाओ, स्लोली एकदम समझो। क्या करना है, डिवाइड R2 बाई -5, लेकिन अपने मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा लिखोगे, मैट्रिक्स लैंग्वेज में, अप्लाइंग R2 चेंजेस -1 अपॉन 5 इंटू R2, ओके। तो 0 अपॉन -5 देखो 0, -5 अपॉन -5 +1,
into A inverse as it is, equal as it is, 1 0 as it is. अब ये -2 अपॉन -5, 2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन -5 -1 अपॉन 5, ये अपने चेंजेस हो गए कौन से, ये ऑपरेशन से, ठीक है। बाकी ये R1 1 2 सेम रहेगा। अब इसके बाद हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इसको देखो 1 0 0 1 होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी होगा। तो अब ये 2 को हमें 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए ऐसा नहीं कि हम 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये रूल अलाउड नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज नॉट परमिसिबल। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर ये 2 -2 मिल जाता तो 0 हो जाता, ऐसा सोचो अपने मन में। यहाँ 3 होता तो 3 -3, 4 होता तो 4 -4, ठीक है। तो ये जितना है उतने टाइम्स ये रो को यूज करेंगे, सिर्फ इधर देखने का, इसको कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो इधर भी और इधर भी। तो चलो अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 -2R2, क्योंकि हमें अभी R1, ये रो 1 है, फर्स्ट रो R1, तो इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले R1 चेंजेस R1 -2 इंटू R2 मीन्स 2 टाइम्स R2 का वैल्यू। तो देखो 1 -2 इंटू 0 1, 2 -2 इंटू 1 -2, 2 -2 0। Second row remains unchanged 0 1 as it is into A inverse equal, अब यहाँ देखो 1 1 -2 इंटू 2 अपॉन 5, तो 1 -4 अपॉन 5 क्या होगा, 1 -4 अपॉन 5 1 अपॉन 5। यहाँ 0 -2 इंटू -1 अपॉन 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 1 जा 2, तो 0 + 2 अपॉन 5 हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन 5, करेक्ट। ये 1 अपॉन 5 और ये हो गया 2 अपॉन 5 राइट साइड में, और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एज इट इज 2 अपॉन 5 -1 अपॉन 5। ये मिल गया अपने को। अब देखो 1 0 0 1 जो अपना टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू दिस मच, अगले स्टेप में लिखोगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया I का वैल्यू। तो देयर फोर I इंटू ए इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 -1 अपॉन 5। देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, उसका रीजन यहाँ लिख दिया हूँ, देख लो। आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 -1 अपॉन 5, ये एज इट इज लिखोगे जो मैट्रिक्स यहाँ पर है। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, मीन्स इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। बहुत ही ईजी मेथड था, आराम से सिंपल वे में कर लिए। अब क्या करना है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ 1/5 को आउट रखना चाहता है तो आउटसाइड भी रख सकते हो। 1/5 कॉमन कर लोगे इंटू 1 2 2 -1, 1/5 बाहर हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को एडजॉइंट मेथड से भी करोगे तो वही डेटे का वैल्यू 5 आएगा और ये 1/5 बाहर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ सॉल्व कर सकते हो, 1/5 जो है बाहर करके इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे। तो कोई भी मेथड से करो, adjoint method or row transformation or column transformation, we get same answer in all the three cases, in all the three methods। तो यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दिया गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय एडजॉइंट मेथड, या कभी बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ज़्यादा करके दो मेथड हैं, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी रेयरली पूछा जाता है। तो जहाँ पर जैसा आएगा मैं वैसा बताते जाऊँगा, ठीक है। Now see question number second. This is your given matrix 2 -3 -1 2. So dear students, you should try this question in the homework. अगर मान लो अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, और मैं वो भी हेल्प कर देता हूँ। पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, डेट ए क्या होगा, 2 इंटू 2 4 -3 1 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयर फोर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। और सबसे पहले इसमें R1 चेंजेस R1 चेंजेस R1 प्लस R2 करोगे, क्योंकि देखो 2 -1 यहाँ 1 दे देगा इजीली, और -3 + 2 यहाँ -1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आ गया फिर इसको 0 बनाओगे, फिर इसको 1 बनाओगे, और यहाँ 0 बनाओगे, आ जाएगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को ट्राई करके देखो कि कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, तो ट्राई योर होमवर्क and leave your comment in the comment box.
Sir, I have completed the question given in the homework. चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन तो क्योंकि यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया है तो यू आर फ्री, किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन न्यू मेथड्स भी जानना जरूरी है, इसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन से दिया मैंने। ठीक है, तो चलो आगे भी चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड वन, this is given matrix 0 1 2 1 2 3 3 1 1. Let A equal to 0 1 2 1 2 3 3 1 1. Therefore first you have to find determinant of A. Let A equal to 0 determinant of 0 1 2 1 2 3 3 1 1. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 0 इंटू दिस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 2 माइनस 3, फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल ये प्लस होता है, माइनस और ये प्लस, तो प्लस हमने यहाँ 0 लिया, फिर माइनस 1 second column and first row cancelled, 1 into 1 1 minus 3 into 3 1 minus 9, फिर लास्ट एलिमेंट प्लस टू ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, 1 into 1 minus 2 into 3 1 minus 6, तो प्लस 2 into 1 minus 6, this is 0 into something, all of 0, here it is 1 minus 9 minus 8 into minus 1, it is plus 8, and 1 minus 5 into plus 2 minus 10. So 8 minus 10 is minus 2 is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को चलो हम लोग कर लेते हैं बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से बता देता हूँ। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A inverse exists. Now find out cofactors. Now find out A11 minus 1 raised to 1 plus 1. So first row, first column get cancelled. 2 minus 3, this gives minus 1. 1 into minus 1, minus 1. A12 minus 1 raised to 1 plus 2 into, देखो first row, second column get cancelled. 1 minus 9, this gives minus 8. मीन्स जो नंबर यहाँ आ रही है वही नंबर फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स में सेम आते हैं। 1 माइनस 9, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस 8 है, और माइनस 8 इंटू माइनस 1 8। A13 यहाँ पर देखो माइनस 5 आएगा, 1 माइनस 6 ये माइनस 5 है, और ये पावर क्या है 4, तो 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। ये फर्स्ट थ्री एलिमेंट वही होते हैं जो यहाँ पर ब्रैकेट्स में है। ठीक है, ये अंदर दिस दिस दिस, A11 A12 A13 इजीली मिल गया। चलो अभी A21 इज माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। A22 minus 1 raised to 2 plus 2 into minus 6. How minus 6? 2 2, second row and second column get cancelled. तो क्या मिलेगा 0 into 1 0 minus 2 into 3 minus 6. So 1 into minus 6 is minus 6. And A23 minus 1 raised to 2 plus 3 into minus 3 comes. So minus 1 into minus 3 plus 3. A31 minus 1 into 3 plus 1 minus 1. Here it is even power, so minus, it is 1 into minus 1 minus 1. A32 minus 1 raised to 5 into minus 2 plus 2. A33 minus 1 raised to 6 into minus 1 minus 1. Now adjoint of A. So adjoint of A equal to minus 1 8 minus 5 A11 A12 A13, ये वैल्यूज अपने हैं। फिर यहाँ A21 A22 A23 1 minus 6 3, and here A31 A32 A33 minus 1 2 and minus 1, ये लास्ट के थ्री एलिमेंट्स। ठीक, so we get adjoint of A. Now you know what is inverse formula. Since A inverse equals 1 upon det A into adjoint A, so minus 1 by 2 and substitute the value of adjoint A. This matrix यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेम मैट्रिक्स यहाँ पर लिखो। अब इसके बाद माइनस 1 बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या यू कैन से माइनस 2 से डिवाइड कर लो, चाहे जो भी बोलो। तो माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ प्लस ऑफ 8 इंटू माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस 6 इंटू माइनस ऑफ 3 एंड 2 इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 5 इंटू माइनस ऑफ 5 अपॉन 2 3 इंटू माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ प्लस ऑफ। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये अपना इनवर्स मिला। तो इसको भी अगर उस मेथड से करोगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, तो भी आंसर सेम आएगा।
और एडजॉइंट मेथड से हमने करके यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना ये एक्सरसाइज का फोर्थ वन दैट इज लास्ट क्वेश्चन एक और है रिमेनिंग, जो बहुत ही अच्छे से समझोगे, और इसको मैंने लिया है बहुत ही एक प्यारा मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज गिवन मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। फाइंड आउट determinant of a. First you have to consider let a equal to 2 0 -1 5 1 0 and 0 1 3. Therefore determinant of a equal to 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. चलो expand कर लेते हैं। 2 into first row and first column get cancelled, 1 into 3 minus 0 into 1, that is 3 minus 0, 2 into 3 minus 0, minus 0 into something, so minus 0, this row cancel, this column cancel. So 5 into 3 15 minus 0 this, प्लस -1 क्योंकि अपना साइन प्लस आता है मेन, इंटू -1, तो ये कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 5 into 1 -1 into 0, तो 5 minus 0. So what is the simplest form? 2 into 3 6, 0 into something all of 0, and -1 into 5 -5. So 6 minus 5 equal to 1 is not equal to 0, therefore A inverse exists. क्या लिखोगे? Since that is not equal to 0, therefore A inverse exists. For the row transformation, we write here since A into A inverse equal to I. अब यहाँ I का वैल्यू अपना 3/3 है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रोज, तो 3 रोज 3 कॉलम्स अपना I, क्योंकि अपना क्वेश्चन है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A. वैल्यू ऑफ A इज मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 into A inverse equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, an identity matrix in the order 3/3. तो देखो अभी अपने को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, ये पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, मतलब जो यहाँ पर है वो हमें यहाँ लाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स बाय यूजिंग R1 R2 एंड R3। तो R1 R2 R3 का यूज करोगे और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ कन्वर्ट करके लाना है, मीन्स इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बना देना है। यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन करेक्ट चेंजेस होने चाहिए, जो भी नंबर्स आएंगे वो करेक्ट होने चाहिए। तो हमें पहला एलिमेंट, सबसे फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर ये 1 बनाना है तो बड़े नंबर्स में से छोटे को माइनस करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 5 को ऊपर करते हैं, मीन्स R2 को ऊपर ले जाते हैं और R1 को नीचे, ऐसा अलाउड है, ये रूल है, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। देखो अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R2, ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग R2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, R1 R2 को इंटरचेंज करके ले सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 1 0 इन द फर्स्ट रो और 2 0 -1 इन द सेकंड रो, और सेम ऑपरेशन यहाँ भी 0 1 0 ऊपर और 1 0 0 सेकंड रो में हो जाएगा। तो देख लो फिर यहाँ पर तो देयरफॉर 5 1 0 2 0 -1 0 1 3 हमने R1 R2 का इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो बन गया और ये सेकंड रो बन गया। यहाँ पर भी 0 1 0 1 0 0 इंटरचेंज हो गए, बस एक ही यहाँ पर चेंजेस किया, मीन्स इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। तो इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 में यहाँ पर हम लोग चेंज कर लिए। अब इसके बाद इसको 1 बनाना है। अब ये 5 -4 होता तो इजीली बनाता, राइट ना, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर फर्स्ट रो में से माइनस भी करना है, तो क्या लिखोगे, अप्लाइंग R1 changes R1 minus 2R2, R1 changes R1 minus 2 into R2, मतलब सेकंड रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके अपने मन में वो नंबर्स कर लेने हैं, जैसे यहाँ 2 into 2 4, यहाँ 0, यहाँ -2, और फिर 5 -4 माइनस करना चालू करो 1, फिर 1 -0 1 0 -2 है और एक -1 है, तो यहाँ पर 0 + 2 हो जाएगा, दैट इज +2। यहाँ पर देखो 0 -2 -2 1 -0 1 0 -0 दोनों 0 हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉरी।
तो 1 1 2 ये हो गया अपना फर्स्ट रो, और दिस साइड -2 1 0. रिमेनिंग second row no change, this side and this side also. Second and third row remains unchanged. Means R2 and R3 remains unchanged. देखो 2 0 -1, यहाँ भी 2 0 -1, 0 1 3 0 1 3, this side 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1, और यहाँ A इनवर्स और इक्वल की साइन अपना सेम रहेगी. ठीक है, तो एक ऑपरेशन हमने किया, R1 को R1 -2 इंटू R2, मीन्स R1 एलिमेंट में से R2 एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया. सिंपल लैंग्वेज. R1 को R1 के ऑल एलिमेंट्स, R2 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसको जीरो. अब यहाँ जीरो लाने के लिए हमें 2 -2 चाहिए. तो अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 -2 R1. तो दिस गिव्स 2 -2 0 0 -2 -2 -1 -4 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और माइनस कर रहे हो. तो -1 -4 -5, यहाँ देखो 1 + 4 becomes 5 0 -2 -2 0 -0 0. तो R1 रिमेन्स अनचेंज्ड. यार R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ R2 में ही चेंज होगा. देखो तो R2 में चेंज किया, R1 एंड R3 को सेम लिखते हुए ये हमने मैट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिया. ठीक है, दिस मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स इक्वल टू दिस. सिर्फ और सिर्फ R2 में चेंजेस किया गया. ठीक है, R2 में क्या चेंजेस हुआ, R2 -2 टाइम्स R1, ये सब ट्रैक कर दिया. अब इसके बाद अपने को यहाँ जीरो लाना है, जो ऑलरेडी है. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. 1 0 0, फर्स्ट कॉलम इज रेडी 1 0 0. अब इसको 0 1 0 बनाना है. अब इसको 0 1 0 बनाने के लिए चलिए आगे. अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 -R3. क्योंकि अगर हम 1 -1 कर दें, और ये भी ध्यान देना है कि ये 1 0 0 हो गया ना, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए. इसको एज इट इज़ रखते हुए हमें यहाँ पर 0 1 0 बनाना है. एज इट इज़ 0 1 0, मतलब ये 1 0 0 में अब कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए लास्ट तक. दिस इज अनचेंज्ड, दिस मस्ट बी अनचेंज्ड. सिर्फ हमें यहाँ 0 1 0 लाना है. तो देखो वी सी दैट अगर हम लोग R1 और R3 का यूज़ करेंगे तो यहाँ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 1 -0 1 ही देगा. तो R1 -R3 यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो अप्लाइंग R1 चेंजेस R1 -R3. तो दिस गिव्स देखो 1 -0 1 1 -1 0 and 2 -3 -1. This side -2 -0 -2 1 -0 1 and 0 -1 -1. तो रिमेनिंग R2 एंड R3 रिमेन्स अनचेंज्ड. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया. इंटू A इनवर्स इक्वल टू समथिंग. तो देखो सिर्फ R1 -R3 रो 1 को, मतलब रो 1 माइनस रो 3 करके हमें रो 1 पर लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ जो बनाना था. अब इसको 0 1 0, अब इसको 1 लाना है. तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना है उसको देखिए आगे. पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको ऐड कर दें दोनों को तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये 0 भी चेंज नहीं होगा. तो इसको ऐड करोगे 0 + 0 ही रहेगा, और -2 + 1 यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 1 0. पहले -1 लाते हैं, फिर -1 से मल्टीप्लाई करके +1 बना देंगे. तो अप्लाइंग R2 चेंजेस R2 + R3. R2 + R3 ये ध्यान देना. तो देखो R2 में चेंज होगा. देखो R1 पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं. R1 रिमेन्स अनचेंज्ड 1 0 -1 सेम. फिर 0 + 0 0, -2 + 1 -1, -5 + 3 -2 हो गया. एंड R3 रिमेन्स अनचेंज्ड 0 1 3 एज इट इज इंटू A इनवर्स इक्वल टू सेम ऑपरेशन दिस साइड -2 1 -1 एज इट इज 5 + 0 5 -2 + 0 -2 0 + 1 1 एंड R3 0 0 1 एज इट इज. ठीक. अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग R3 चेंजेस R3 + R2. क्योंकि अपने पास यहाँ पर 1 है, तो इसको पहले 0 बना लेते हैं, फिर इसको +1 बन जाएगा आराम से. तो 0 + 0 0 1 -1 0. अगर ये मान लो +1 रहता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ -1 है इसलिए इसको प्लस कर दिया. ठीक है, 0 3 -2 1. दिस साइड 0 + 5 5 0 + -2 -2 1 + 1 2. ये सिर्फ थर्ड रो में चेंजेस हुआ. R3 changes R3 + R2 means change in R3 only, not in R1 and R2. R1 as it is
इंटू ए इनवर्स इक्वल्स R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़। देखो R1 R2 दोनों साइड सेम है, सिर्फ R3 में हमने चेंज किया। क्या किया? R3 प्लस R2 करके R3 में लिखना है। यहाँ +1 चाहिए, तो चलो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे एलिमेंट को। तो उसको यहाँ पर क्या लिखोगे? अप्लाइंग R2 चेंजेज R2 इंटू -1। तो ये सिर्फ माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 0 -1 एज इट इज़ 0 1 एंड +2, 0 1 2 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -2 1 -1 5 -5 -2, सॉरी -5 +2 -1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 इंटू -1 -1, 5 -2 2, ये करेक्ट यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें ये सभी टर्म्स को क्या करना चाहिए? ये हो गया 0 1 0। अब 0 1 0 आने के बाद हमें यहाँ पर 0 0 1 लाना है। तो ये 1 है इसको, तो इस केस में मान लो यहाँ 1 नहीं होता, अगर 3 होता, 4 होता या 5 होता तो क्या करते? मान लो यहाँ पर 3 होता या 5 होता, 5 होता तो हम लोग पहले R3 को 5 से डिवाइड कर देते। मीन्स सबसे पहले ये 1 0 0 0 1 0 सेट होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओ, अगर 1 है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करो, 1 ही चाहिए। अब ये 1 के हेल्प से इन दोनों को हम 0 बना सकते हैं इजीली, और इधर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? देखो इसको इसको हमें 0 बनाना है, तो R1 प्लस R3 कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। और ये 0 बनाने के लिए R2 चेंजेस R2 माइनस 2R3, क्योंकि ये 2 टाइम्स लोगे तो ये 0 होगा। तो यही सेम ऑपरेशन नाउ वी अप्लाइंग इन द नेक्स्ट स्टेप। अप्लाइंग R1 changes R1 plus R3 and R2 changes R2 minus 2R3। ये 2 ऑपरेशंस 1 स्टेप में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। या अगर किसी स्टूडेंट को ये दोनों ऑपरेशन एक ही साथ नहीं समझ आते तो इनको सेपरेटली लिख करके 2 स्टेप्स में ये स्टेप को लिख सकते हो। तो देखो R1 प्लस R3 ये क्या मिलने वाला है? यहाँ पर देखो R1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो ये देखो 1 0 0। सेकंड रो विल हैव नो चेंज, तो 0 1 0 एज इट इज़। अब इसके बाद हम यहाँ पर 0 0 1, ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट है क्योंकि ये 2 है, सॉरी ये 2 है, यहाँ 0 -0 1 -2 इंटू 0 1, और 2 -2 ये 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, ये सेकंड पार्ट से R2 माइनस 2R3। तो वी गेट इन द लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स सेम ऑपरेशन इन द राइट हैंड साइड। See this, -2 plus 5 3, and 1 -2 -1, -1 plus 2 1, मीन्स R1 प्लस R3 कर दिए। अब यहाँ पर भी R2 -2 टाइम्स R3, तो -5 -2 इंटू 5, तो -5 -10 -15। फिर यहाँ पर 2 माइनस माइनस 2 -2 इंटू -2, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6, ये हो गया। और यहाँ पर -1 इंटू -4 दैट इज -5, ये हो गया। तो सेकंड रो में यहाँ पर क्या आ गया? -15 6 एंड -5। थर्ड रो रिमेन्स अनचेंज्ड, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं। नाउ दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, so we should write here therefore I into A inverse equal to same matrix 3 -1 1 -15 6 -5 and 5 -2 2. Now, but I into A inverse is A inverse only, given reason here, I into A inverse equal to A inverse. So therefore, A inverse equal to 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो ये अपने एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए, और ये कैलकुलेशन कैसा हुआ अपना? बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए इनवर्स इक्वल टू दिस मच। तो ए इनवर्स यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड कर लिए, और इसी क्वेश्चन को अगर एडजॉइंट मेथड से फाइंड करना चाहते हो तो एडजॉइंट मेथड से भी हमें सेम आंसर आने वाला है। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहते हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सेम आंसर आएगा, जिसमें C1 C2 C3 का यूज़ करोगे। ओके,
तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एडजॉइंट मेथड, फिर उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फिर आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स को देख करके किसी को भागना नहीं है। रो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये सभी सबसे पहले डेटे निकाला, डेटे निकालने के बाद अगर ये जीरो नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट्स, सिंस ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई, अपनी वैल्यूज रखते जाओगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये अपने ऑपरेशन चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड फार्मूला है, यहाँ पर नंबर जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने सूझबूझ से, अपने सोच समझ से उसको लिखना है और यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो जैसा सोचते जाओगे समझते जाओगे वैसा यहाँ पर लिखते जाओगे। सिर्फ ये टारगेट रखना है कि 1 0 0 कैसे लाना है, 0 1 0 कैसे लाना है, ये और सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करके ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और अपना आंसर ए इनवर्स कंप्लीटेड नाउ। और ये रीजन कंपलसरी सबको देना है कि आई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।